Okay, let us start now. Today we will start unit 2. Okay, unit 1 is over in the last class. We have today we will discuss denumerable sets. First topic of this unit is denumerable sets. Okay, so what is a denumerable sets, or it is also called countably infinite? Okay, a set D is said to be denumerable or countably infinite if D has the same cardinality as N. Okay, that is, if there exists a one-to-one correspondence, that is bijection between D and N. Okay, किसी सेट से एन में बाइजेक्शन हमें मिले तो ठीक है, वो दोनों सेट की कार्डिनेटी the cardinality of these two sets will be equal because these two sets are equivalent. So उस केस में we will say that D is denumerable or countably infinite. Okay, that is, ये है कि किसी सेट को हम डिन्यूमरेबल या तो काउंटेबली इनफाइनाइट कहेंगे उस सेट से n में हमें बाइजेक्शन मिल जाए. ओके, एज फॉर एग्जांपल सेट ऑफ इवन इंटीजर्स. सेट ऑफ इंटीजर्स देखा होगा तुम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में. ओके, कि n से कैसे e में हम बाइजेक्शन fx इक्वल टू 2x मैप है. ओके, वी विल गेट एन बाइजेक्शन. सिमिलरली n to z. ओके, we also solved this problem. Okay, we showed that z is equivalent to n. Okay, so therefore z is a denumerable set. E is a denumerable set because they have the same cardinality as n. Now countable set. What is a countable set? A set is said to be countable if it is either finite or denumerable. Okay, otherwise it is called uncountable set. So finite हो जिसमें 5 एलिमेंट है 6 एलिमेंट, उसको भी हम काउंटेबल कहेंगे. ओके, और डिन्यूमरेबल जिसका जो n के साथ बाइजेक्शन रखता हो, ऐसा कोई सेट हो डिन्यूमरेबल. तो फाइनाइट हो या डिन्यूमरेबल हो, इसमें हम we will say that it is countable. Okay, so countable means it may be फाइनाइट सेट और डिन्यूमरेबल सेट. या तो फाइनाइट होगा या तो डिन्यूमरेबल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 6.3a, पेज नंबर 143. In your book you will see this page. Okay, any infinite sequence a1 a2 an of distinct elements is countably infinite, that is denumerable. Okay, and in infinite sequence of distinct element is countably infinite or denumerable. कोई भी इनफाइनाइट सीक्वेंस होगा या डिन्यूमरेबल सेट से तो हम उसको एज ए इनफाइनाइट सीक्वेंस हम लिख सकते हैं. देखिए, ए सीक्वेंस इज एसेंशियली ए फंक्शन f from n to r. A sequence is essentially a function f from n to r by fn equal to n. So if fn are distinct, the function is 1 1 and 1 2. Thus by definition the infinite sequence a1 a2 an of distinct elements is denumerable. तो कोई भी इनफाइनाइट सीक्वेंस हो, ठीक है, इसे हम ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, इसे हम डिन्यूमरेबल सेट कहेंगे. ओके, now thus each of the following sets is countably infinite or denumerable. S1 equal to uc 1 2 1 3 1 4 1 upon n. ओके, ये सीक्वेंस है 1 upon n के सीक्वेंस है. This is the sequence of 1 upon n and uc s2 1 minus 2 3 minus 4 5 minus 6 like this. So this is a sequence of minus 1 to the power n minus 1 into n. ये जनरल टर्म है. ओके, s3 you see 1 1 4 8 9 27. देखिए 3 square 3 cube. Yeah, so it is a sequence whose general term is n square comma n cube. So therefore these all are denumerable sets. तो कोई भी infinite sequence हो हमारे पास
of distinct elements, so it is denumerable. Now we will prove that the set n cross n is countably infinite, that it is denumerable. Okay, this Cartesian product of n cross n. Okay, n and n की Cartesian product. Okay, n cross n को हमें प्रूव करना है कि काउंटेबली इनफाइनाइट. So n cross n के मेंबर कैसे हैं? Member n cross n is this set Mn, ordered pair Mn, where m n both are n, because here both the sets are n same. So m is also n and n is also n. So we may arrange the set n cross n as shown below. ठीक है, जितने सारे हमारे पास ordered pairs है उसको we will arrange like this: 1 1 1 2 1 3 1 4. You write first row as a starting element 1 1 1 1 2 1 3 1 4. Second row as 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 like this, and third row is 3 1 3 2 3 3 3 4. You are arranging. These are the elements of n cross n. Okay. Now you will see this. We observe that in the above arrangement, every member of n cross n is placed in a definite position such that no member escapes. Hence, the set n cross n is countable. Means you see, this is your set n cross n. अब इसको आप n के साथ बाइजेक्शन है आपका, ये एरो यही मीन करता है. ठीक है, देखिए 1 सपोज योर n, आपको बाइजेक्शन चाहिए फ्रॉम n. इससे काउंटेबल के डिन्यूमरेबल कहना है, तो काउंटेबली इनफाइनाइट मींस डिन्यूमरेबल. सो डिन्यूमरेबल किसी सेट को आपको प्रूव करना है तो आपको n से उसी सेट में 1 1 1 2 मैप शो करना है. ओके, बाइजेक्शन दिखाना है. तो कैसे हो जाएगा n से? ये तो आपका सेट है जिसको आप डिन्यूमरेबल प्रूव करना है. तो 1 1 मैप कैसे, हाउ वी विल शो दैट दिस 1 1 मैप among these elements from n? You see 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, like this way you can arrange. Okay, you can map 1 2 1 1 2 2 1 2 3 2 1 4 map to 3 1 5 map to 2 2 6 map to this, like this way. So you are getting a 1 to 1 correspondence between n and the member of n cross n among these. Okay, so by this arrow diagram it is clear. Okay, no need to write a map. Okay, this is from arrow diagram, it is clear that the map is 1 1 and 1 2. Now similarly w equal to 0 1 2 3, that is, this is the set natural number union 0. Okay, so set of, this is also called set of whole numbers भी कहते हैं, और या तो set of non-negative numbers. Okay, so we know each positive integer n belongs to n can be uniquely written in the form n equal to 2 to the power r into 2s plus 1, where rs belongs to w. Okay, कोई भी इंटीजर हो आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं. So consider the function f from n to w cross w, defined by f of n equal to r comma s, where r and s is above. So you can prove it that your map is your map is 1 1 and 1 2. So that means you see 1 1 and 1 2 means it is a bijection from n to w cross w. So therefore w cross w is denumerable. So therefore w cross w has the same cardinality as n. ये इसको प्रूफ कर लीजिएगा. f of n equal to f of m लेके this is will equal to r comma s. Okay, n equal to f of n equal to this 2 to the power r into 2s plus 1. Okay. N equal to n, both are same. If you take fn equal to fm, okay, so this is equal to n equal to 2 to the power r into s plus 1, and this. Also for
any RS in W plus W, there exist a n equal to 2 to the power r plus into 2r plus 1. Okay, this belongs to n because every member of n, we have for every r and s in W plus W, there exists a natural n 2 to the power r. Okay, n belongs to n, so there exists a natural number 2 to the power r into 2s plus 1 such that f of 2 to the power r into 2s plus 1 equal to rs. So the map is 1 to. Similarly, so n cross n is a subset of W cross W, where n cross n is a denumerable set. It is already proved. N cross n is a denumerable set, and it is also a subset of W cross W. This leads us the next theorem. Every infinite set contains a denumerable subset. Every infinite set contains a denumerable subset. Let A be an infinite set. Let us consider the choice function f of f from Pa to A. Okay, choice function आप जानते हैं, f of A belongs to A, f of A2 belongs to A2. This is called choice function. Okay, p f of Pa to A में choice function हमने consider किया है. Consider the following sequence: A1 equal to f of A. We take f of A equal to A1. Okay, and f of A belongs to A because f is choice function. Similarly, we put A2 equal to f of A minus A1, and A minus A1 belongs to A minus A1. f of A minus A1 belongs to A minus A1 because f is choice function. इसका मतलब क्या है? A1 belongs to A and A2 belongs to A minus A1. Similarly, A3 belongs to A minus both these members A1 A2. इसको माइनस करके A से ये दोनों हटा दीजिए. सिमिलरली इसी तरह का AN भी चूज करिए, A माइनस अप टू A माइनस N1 तक इसको निकाल लीजिए यहाँ से. ठीक है, तो इससे क्या आपको क्या हो जाएगा, ये जो इस तरह की चॉइस जो आप सेटिंग कर रहे हैं कि A2 belongs to A minus A1, A3 belongs to A minus A1 A2. Since A is infinite, okay, since A is infinite, A minus A1 A2 AN minus 1 is non-empty for every n belongs to n. Okay, since A infinite है, उसे एक एक करके आप निकाल के जो ये सेट बनेगा आपका A minus A1 is non-empty for every n belongs to n. Okay, we need, you see, this should be non-empty A minus A1 A2 because A3 belongs to, we are finding A3 कहाँ है, A3 को कहाँ किस सेट से ले रहे हैं, A minus A1 A2, so this should be non-empty. ओके नहीं तो कैसे मिल जाएगा A3 A minus A1 A2, वही चीज यहाँ लिख रहे हैं. देखिए कह रहा है since A is infinite A minus this is non-empty for each n belongs to n. Since f is a choice function, therefore an not equal to ai for I less than n. You see here, since A2 belongs to A minus A1, similarly A3 belongs to A minus A1 comma A2. So ये always क्या होगा, इसी सेट में है जिसमें A1 नहीं है, so that means A2 not equal to A2 and A1 are distinct. Similarly A3 not equal to A2 and A2 not equal to A1. So all these members are distinct. Okay, an not equal to ai for I less than n because an कहाँ से है, A minus A1 A2 A n minus 1 से, तो ये सब आपने बाहर निकाल लिया A से और उसी सेट से an है. ओके, तो an इन मेंबर्स के बराबर नहीं हो सकता. an will not be same. Okay, an will not be equal to A1, an will not be equal to A2, an will not be equal to an minus 1. Okay, this was what is this mean, an not equal to ai for I less than strictly less than n. Thus the an are distinct. Okay, therefore all an are distinct and therefore d equal to, d is the set a1 a2 इस तरह की सीक्वेंस आप ले लीजिए a1 a2 and all are distinct elements. ठीक है, ये बाई सेटिंग आपका a1 a2 all सब distinct हो गया because you are using choice function. Okay,
सो चॉइस फंक्शन के हेल्प से आपको सारे ये सब डिस्टिंक्ट मिल गया और उसका सीक्वेंस आप ले लीजिए, ठीक है, डी which is contained in A. All these A1, A2, An are ultimately a member of A. So this is a subset of A, but it is a sequence of distinct elements. Okay. So then by this theorem 6.3a कि कोई भी infinite sequence of distinct elements हो, distinct elements के हो, तो वो सेट जो है डिन्यूमरेबल सेट है सिंपली बाय fn इक्वल टू an आप रख दीजिए, तो which is denumerable by this theorem. पहला आप जो सबसे पहला एग्जांपल हमने डिस्कस किया है, कोई भी इनफाइनाइट सीक्वेंस हो ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, तो वो सेट क्या है, वो जो है वो डिन्यूमरेबल. ओके, यहाँ भी यही चीज हमें मिल गया, हमें तो डिस्टिंक्ट शो करना था, ठीक है. सो अल्टीमेटली दीज मेंबर्स आर इन ए, ओके, बट वी नीड टू only we need to show that these members are distinct. So by our setting we prove that an not equal to ai like this, so which is denumerable by this part. Now next theorem, a subset of a denumerable set is either finite or denumerable. Okay, a subset of a denumerable set is either finite or denumerable. दो ही पॉसिबिलिटी हो सकता, या तो फाइनाइट होगा या डिन्यूमरेबल. तो कैसे, लेट a इक्वल टू दिस बी एनी डिन्यूमरेबल सेट. ओके, लेट a be a denumerable set. Say this is the this is the infinite sequence of distinct members. Okay, a1, a2, an. This is the sequence because a is denumerable set. Let b be a subset of a. अब इससे कोई सबसेट ले लीजिए, किसी कुछ मेंबर लेके, ठीक है. सबसेट आप सबसेट कंसीडर करिए, ये b इज 5, ओके, ये b इक्वल टू 5, तो देन b इज फाइनाइट. तो दो पॉसिबिलिटी हो सकता है सबसेट में, या तो वो फाइनाइट है, ठीक है. अब सपोज एम्प्टी सेट, नॉट एम्प्टी सेट, सपोज b नॉट ए एम्प्टी सेट. ओके, let b1 be the first element in the sequence 1 such that b1 belongs to b. Okay? b1 कोई मेंबर आप उस सीक्वेंस से आपने चूज किया है, जो आपका जो सेट है b का पहला मेंबर है, कोई एक यहाँ से उठा ए में से जो कोई भी एक मेंबर आप लीजिए, b1 be the first element in the sequence 1. ये सीक्वेंस है जो यहाँ वो इक्वेशन 1 यू सी. तो इसमें से कोई भी एक मेंबर, जो मेंबर उठाइए, जो बी जो सेट आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसी सेट के पहला मेंबर, such that b1 belongs to b. Now let b2 be the first element which follows b1. Okay, now b2 is the first element which follows b1 in the sequence 1 such that b2 belongs to b. Okay, and so on. So अब b के पहला मेंबर हो गया आपका b1. अब आपको दूसरा मेंबर लाना है, कहां से, a से लाना है. तो वो ऐसा मेंबर हम कहीं से वहां से ढूंढ के लाएंगे, जरूरी नहीं है कि जहां से लिया था पहला एलिमेंट जो b1 लिया उसके बिल्कुल पास में ही हो दूसरा एलिमेंट b2, वो कहीं और आगे ही. ओके, वहां से हम b2 को उसी सेट में ही है, मतलब उस एलिमेंट के नहीं, आगे इन सम ऑर्डर आगे हैं, तो उसको वहां से लाएंगे जो b1 को फॉलो करता हो, उसका कोई प्रॉपर्टी b1 के साथ वो रिलेटेड हो, किसी प्रॉपर्टी मिलता हो उसको. ओके, सो इसी तरह का b2 लाएंगे, फिर एक b3 लाएंगे जो b2 को फॉलो करता हो. ओके, सो b3 some we will take some member b3 again which is a member of this sequence and which follows b2 similarly. ओके, b2 लाया जो b1 को फॉलो करता हूं, सिमिलरली b3 लाएंगे जो b2 को फॉलो करता हूं, इसी तरह का करके we will collect b1 b2 b3 from this set, from this sequence. Okay, so we will construct this set b equal to b1 b2 b3 like this, जो एक दूसरे को फॉलो करता हूं. next just followed by this, just followed this. Okay, so if the sequence b1 b2 b3 इसी तरह का आप कलेक्ट कर रहे हैं, एक जगह जाके खत्म हो गया कि मतलब एंड हो गया,
देन बी इज फाइनाइट, इसका मतलब आपका कलेक्शन फाइनाइट हो गया। ओके, और इसी तरह का आपको कलेक्शन मिलता जा रहा है कंटिन्यूअसली। ओके, तो क्या होगा, बी इज एन इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ओके, इसका मतलब आपको कोई इनफाइनाइट, फिर अगेन इनफाइनाइट सीक्वेंस मिल जा रहा है डिस्टिंक्ट मेंबर्स के। ओके, सो आइदर बी एंड्स हो गया, बी टर्मिनेट हो गया, इसी तरह का कलेक्शन आप ले रहे हैं और कहीं जाके टर्मिनेट हो गया तो वो तो ठीक है, फाइनाइट हो गया। ओके, अब बी इसी तरह का चलता जा रहा, इफ इट इज नॉट एंडिंग, ओके, देन वो सेट बी कैसे बनेगा, बी इज एन सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, बी इज एन इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। और देन वो 6.3 एग्जांपल पार्ट है कि कोई भी सीक्वेंस है डिस्टिंक्ट मेंबर्स की, तो वो इनफाइनाइट सीक्वेंस है डिस्टिंक्ट मेंबर्स की, तो उस केस में उसे हम क्या कहते हैं, डिन्यूमरेबल सेट। ठीक है, तो यहां खत्म हो गया, कलेक्शन खत्म हो गया, तो ठीक है, फाइनाइट हो गया। नहीं खत्म हो रहा तो इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट है, ये आप B1 B2 B3 वहां से उठा रहे हैं। ओके, सो ये इनफाइनाइट सीक्वेंस of distinct members, then by using this example 6.3 part A, this set is B, your new constructing set B. Okay, this is a subset of your A, this is a subset of your A। A से आप चूज कर करके एलिमेंट ला रहे हैं, A से ला रहे हैं, यहाँ कहीं से, यहाँ से एक लिया, बीच में यहाँ से दूसरा लिया जो B1 को फॉलो करता हो, B2 यहाँ से लिया है, सम B3 यहाँ है जो B2 को फॉलो करता हूँ। ओके, so इसी तरह का आप कलेक्शन ले रहे हैं। so ultimately these are the members of A, so B is a subset of A। तो उस केस में या तो फाइनाइट हो गया या तो denumerable। so this means a subset of denumerable set is either finite or denumerable। इसके रेफरेंस में आप ये देख सकते हैं, ये जैसे एग्जांपल है, ये कोई इनफाइनाइट सेट है आपके पास Z। ओके, you see 0 1 -1 2 -2 3 -3 4 -4 5 -5 6 -6 like this is the set Z, and we know that Z is denumerable। okay, Z से N में मैप या N से Z में मैप, पहले शुरू में जो एग्जांपल बताया था। ओके, दोनों के कार्डिनलिटी सेम है N के और Z के, इसका मतलब Z इज इक्विवेलेंट टू N और Z इज denumerable हो गया। तो वहां से देखिए आप, अब जो B1 कौन सा मेंबर आप लेंगे, सपोज B1 लेना चाहते हैं, कोई एक मेंबर यहां से, ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है यहाँ ये। ओके, अब यहां से आपको एक सबसेट लेना है, तो 2 ले लीजिए सबसे पहले। ये आपका B1 है, जो उस थियोरी में हम बता रहे थे कि सब एक एग्जांपल में बता रहा हूं कैसे आपका B1 B2 B3। ओके, तो B1 मान लीजिए आपने 2 लिया है। ओके, नेक्स्ट मेंबर देखिए यहाँ कहीं है, यहाँ है 4, वो यहाँ है, उसके बाद इधर बीच में 3 एलिमेंट है, तो ये B2 है जो B1 को फॉलो, इसका ट्वाइस करके आप ले रहे हैं, जो B1 को फॉलो करता हो 2 से उसका डबल ये ले लीजिए। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट मेंबर ट्वाइस B1, B2 क्या है, ट्वाइस ऑफ B1, फिर B3 आप ले लीजिए 6, कहीं से 6 देखिए यहाँ है, B3 को इस सेट में ले आइए। B3 क्या है, B3 फॉलो करता है इसको B2 को, और B2 B1 को इसी तरह का फॉलो करते हुए जैसे 2 4 6 8 ऐसे सेट ले लीजिए। अब वो सेट कलेक्शन कभी आपका खत्म होगा नहीं। ओके, तो ये सेट क्या होगा, फाइनाइट तो है नहीं, तो अल्टीमेटली ये सेट डिन्यूमरेबल। ओके, यस, ये सेट तो तुम जानते ही हो, ये लोग क्या, कौन सा सेट है ये सेट क्या है, ये इवन सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। ओके, ये ऑटोमेटिक ऑलरेडी तुम लोग जानते हो, ये बी नथिंग बट ई हो गया। इस केस में बी जो है वो कैपिटल ई है, सेट ऑफ इवन इंटीजर। तो वो सेट हम जानते हैं, ये सेट ऑटोमेटिक फाइनाइट एन से इसमें बाइजेक्शन आप रख सकते हैं, fx इक्वल टू 2x, तो देयरफॉर b इज क्या हो गया, b डिन्यूमरेबल हो गया। ओके, देखिए n टू b, n इज इक्विवेलेंट टू b। हेलो सर, हाँ बताइए। सर मैं ये कह रहा था सर, फाइनाइट के लिए जरूरी थोड़ी नहीं कि 5 सेट लिया जाए सर, हम 2-3 एलिमेंट लेकर भी तो उसे फाइनाइट कह सकते हैं। नहीं, आपका कलेक्शन खत्म तो नहीं हो रहा है, कलेक्शन खत्म हो गया तो फाइनाइट केस हो जाएगा। ये इसी z से ले रहे हैं ना, तो 6 के बाद तो जरूर आपके पास
2 4 6 8 भी है, 8 के बाद 10 है, 10 के बाद 12 है, तो ये कलेक्शन तो कभी खत्म नहीं होगा आपके पास। यस सर। अरे यहाँ टर्मिनेट हो गया, मान लो कोई ऐसा सेट है, ओके, जो बंद हो गया, तो कोई भी वो भी हमारे पास ऑप्शन है, कह रहा है कि आइदर फाइनाइट और डिन्यूएबल, तो वो फाइनाइट में चला जाएगा। ठीक, ये खत्म ही नहीं हो रहा, ये इस तरह की चॉइस जो आप चॉइस इसी चॉइस के हिसाब से ले रहे हैं आप मेंबर्स एक एक करके, B1 B2 B3, ठीक है, खत्म हो गया तो कोई बात नहीं, फाइनाइट केस एक ऑप्शन हो गया हमारे पास। हमें दोनों ऑप्शन, हमें आइदर फाइनाइट दिखाना या डिन्यूमरेबल। तब इफ टर्मिनेट हो गया, हमारे पास और कलेक्शन नहीं है, बंद हो गया तो फाइनाइट हो गया, और नहीं है ऐसे ही चलता जाएगा। आप जेड से कलेक्शन ले रहे हो तो खत्म कैसे होगा? जेड से आपका कलेक्शन, ओरिजिनल सेट आपका ए जो है जेड है, तो ए से आप जब ले रहे हैं तो फिर आपका कलेक्शन कभी खत्म नहीं होगा। तो ये तो इनफाइनाइट है, दिस इज एन इनफाइनाइट सीक्वेंस बन गया ऑफ डिस्टिंक्ट मेंबर्स। यू सी सब डिस्टिंक्ट है, 2 4 6 8 10 12, ओके। और ये एग्जांपल क्या कहता है, वो जो हमारा पहले यस सर। सबसे पहला एग्जांपल, इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, इट इज a denumerable set, okay। सर आपने जो fx बराबर 2n लिया है, हम और कोई से भी ले सकते हैं, जैसे कि ऑल नेगेटिव नंबर का सेट ले लें, वो भी इनफाइनाइट हो जाएगा क्योंकि वो भी खत्म नहीं हाँ होगा। ऐसे ले लें, कोई बोले 1 ले ले, 3 ले ले, 5 ले लें, ठीक है। कोई फॉलो करता हो, कोई रूल फॉलो करता हो, डिपेंड ऑन 1 अस। 3 5, जैसे 1 के साथ 2 ऐड कर लो तो क्या हो गया 3, 3 के साथ 2 ऐड कर लो तो 5, इसी तरह का कोई फॉलो करता हो वर्ड का ले लो, कोई 5। हाँ, ओके। डिफरेंस कांस्टेंट रहना चाहिए मतलब जो भी है, मतलब आपको एक सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को फॉलो करता हूँ, इसी सीक्वेंस, मतलब कोई उसका nth टर्म मिलना चाहिए ना। सीक्वेंस मतलब ये नहीं है कि उल्टा सीधा यस सर। वो है, कोई एक सीक्वेंस में, जैसे वर्ड ये जैसे यहाँ है, इसका जनरल टर्म क्या है, ट्वाइस n है, तो कोई सीक्वेंस फॉलो करता हो, ऐसा ना कि आपने उल्टा सीधा कलेक्शन ले लिया, फिर उसको नहीं कह सकते आप इसी, आपको जनरल टर्म निकालना पड़ेगा, फिर n से आपका 1 1 में भी होना जरूरी है, ओके। n से उसी सेट में 1 1 डिन्यूएबल कहना हो तो वी नीड बाइजेक्शन, ओके। यस सर। और सर फाइनाइट के लिए कोई सा भी ले सकते हैं, फाइनाइट के लिए भी। अब फाइनाइट केस यहाँ बनेगा नहीं, यहाँ तो आप किसी सेट हमारा इनफाइनाइट है, तो इसमें फाइनाइट कैसे करेंगे, फाइनाइट क्या होगा? एक तो केस वो हमने कर लिया नहीं, है, अगर फाइनाइट की कंडीशन आई तो। ओके सर। ठीक है। यस सर। यहाँ है, देखिए ये जो इसमें डिन्यूमर है, इसलिए डिन्यूमरेबल सेट है, इसलिए आपने इसको ऐसे लिखा है, ए इज द सीक्वेंस ऑफ, ये मतलब सेट है, बेसिकली सीक्वेंस है A1 A2 AN, ठीक है। तो इसको इसलिए लिखा है बिकॉज योर सेट इज डिन्यूमरेबल। फिर बाद में अल्टीमेटली कलेक्शन भी यहाँ भी जाके सीक्वेंस बन जाए, तो देन अगेन इट इज डिन्यूमरेबल। Okay, next class I will start this one, a subset of countable set is countable, okay? ओके सर। Okay, सर अटेंडेंस अटेंडेंस पूरी नहीं होगी सही है। okay, चलिए। सर सर वकील सर ने अटेंडेंस ली थी, आप भी लेंगे क्या? हाँ अटेंडेंस में तो ये ले रहा हूँ, 10 लोग हैं, मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, यस सर यस सर। ओके। 10 मेंबर्स sir. में हमारे पास ये लिस्ट है, ओके। ओके, सी यू नेक्स्ट क्लास इन फ्राइडे आई थिंक, ओके। ओके सर, अस्सलाम वालेकुम। यस सर। अस्सलाम